Hello, Scorpio people. How are you doing? Welcome to my reading. It's a reading about your current life situations, current life story, in whatever area it might be it love life, be it professional life, be it family life, be it educational life, whatever it is, whatever domain, because it's a general energy checking. Okay, so it's a tarot reading and oracle reading mixture of both. You can watch it as a sun sign, moon sign, ascendant sign, and if you need to know something about your love life, you can watch it as a Venus sign also. Okay, so it's a general reading about your life in general, Scorpio people. Let's see what you're facing. I'll be using 4 multiple decks, mixture of tarot and oracle decks to further enhance your reading and to get an in-depth meaning of the reading, okay? A better guidance. हालांकि आपको हर एक स्टेप में गाइडेंस मिल जाएगा. First, I'll shuffle all the cards. Please have patience for that, Scorpio people. Then I'll be moving on to the reading part. Viewers, please guide the Scorpio people. Let them know what they need to know. This is the last deck which I would shuffle. A guidance deck. Okay. Okay, starting my reading. Welcome to my reading once again, Scorpio people. Okay, the tarot card that has come out is of 6 of Swords. 6 of Swords. Okay. 6 of Swords denotes transition, transformation, progress, moving ahead, moving forward, travel, overseas. जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, these people are moving forward, you know, through this journey by the boat, sailing ahead. Overcoming hardship, healing, relief and stability. You can expect problems in your life to settle down. जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम से अब आप आगे बढ़ रहे, स्कॉर्पियो पीपल. कुछ प्रॉब्लम्स शायद आप फेस कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी एरियाज हो आपके लाइफ के, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग अबाउट योर लाइफ इन जनरल. तो जो भी प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स आप फेस कर रहे थे, अब आपका हीलिंग का टाइम है, रिलीफ का टाइम है, स्टेबिलिटी का टाइम है, बिकॉज यू आर लिविंग द पास्ट बिहाइंड एंड यू आर moving ahead, moving forward. You can now expect all the problems of your life to settle down. It can also represent escaping, running away, journeys, traveling overseas or going on holiday. हो सकता है इसके लिए ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, इसके लिए मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल ओवरसीज, जगह बदलना,
या फिर माइंड के लिए, माइंड के हैप्पीनेस के लिए जगह बदलना, गोइंग ऑन अ हॉलीडे। इंसान जब थक जाता है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है अपने काम से या लाइफ के कोई भी सिचुएशन से, वी फील लाइक गोइंग ऑन अ हॉलीडे, यू नो, इज़न्ट इट? ये सबके साथ होता है, चलो एक ब्रेक लेते हैं, इज़न्ट इट? इट्स द सेम थिंग. So this card says now you will be overcoming, so it's a positive sign basically. Now you will be overcoming your hardship because it's a time for you to heal yourself, to give relief to yourself. अब stable होगा situation, आपके problems settle down होंगे. Okay? So ऐसा भी नेचर हो सकता है कि आप escape कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम से, आप इतने थक चुके हैं कि आप रन अवे कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, एंड दोज रन अवेज एंड एस्केप कुड बी योर ट्रैवल, गोइंग ऑन अ हॉलीडे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड मीन्स. मेंटली शायद आप बहुत बॉग डाउन होंगे लाइफ के सिचुएशन को लेके. ओके, सी दिस कार्ड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. दिस सेज law of happiness, spread happiness like wildfire. Basically universe is asking you to be happy, feel the happiness. हो गया, ओवरकम कर लिए आप, हार्डशिप्स बहुत हो गया, बहुत सोच लिए, मेंटल टेंशन चाहे कोई भी फील्ड से आ रहा हो, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर हैप्पीनेस. स्प्रेड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, क्रिएट हैप्पीनेस, हैप्पी फीलिंग्स विद इन योर सेल्फ. तो फिर वो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करेगा, यू नो. दिस इज वॉट यू आर बीइंग आस्क्ड. लाफ. ये कार्ड देख रहे क्या लिखा हुआ है? हा हा ही हो. यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू लाफ, लाफ, लाफ. और लाफ ऐसे तो फॉल्स लाफ तो नहीं हो सकता है, हैप्पीनेस अंदर होगा तभी लाफिंग, स्माइलिंग ये सब आएगा, इज़न्ट इट? सो जनरेट हैप्पीनेस विद इन यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. इट सेज, सी हाउ कनेक्टेड दीज कार्ड्स आर, ऑल दीज कार्ड्स. सो जो लोग टैरो जानते हैं, जो लोग टैरो में विश्वास करते हैं, टैरो देखते हैं यूट्यूब पे, उनको वाकई में भरोसा है टैरो के ऊपर. इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ एनी लिब्रा इज वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिलीव इन टैरो. It can certainly predict your life situation and can guide you. Okay, well, this card says it's a water alchemy oracle card, क्योंकि पानी हम लोग के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है. हर एक फॉर्म में आपको पानी मिलेगा. दिस फॉर्म सेज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स हम लोग को जब प्यास लगती है, बॉडी जब सूखता है, गला सूखता है, हम लोग पानी पीना चाहते हैं या फिर कोई लिक्विड पीना चाहते हैं, तो हाइड्रेट करते हैं अपने आप को. स्किन ड्राई होता है तो कुछ क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं. दैट्स हाउ वी हाइड्रेट आवर स्किन. सो हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज रूखापन, ड्राइनेस, ये सब क्या अंदर की बात है, आपके मन की सोच की बात है, दिमाग की बात है, आपके लाइफ की हालत की बात है. तो it means satisfy your spirit. And how can you satisfy your spirit? By this, by generating happiness. This is what is universe is guiding you. This is what is the divine guidance is portraying in the form of messages for you, Scorpio people. Don't get bogged down anymore. Whatever problems or worries you're having, mental worries regarding any situation of your life. So hydrate yourself, which means satisfy your spirit. आपके स्पिरिट को, आपके सोल को सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है. हम लोग को गला में सूखापन लगता है, प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं. वैसे ही योर सोल नीड्स हाइड्रेशन,
Your spirit needs hydration. That's why it is being asked, satisfy your spirit, satisfy your soul, whatever makes you happy. Okay? All these cards are very much related, correlated, my dear Scorpios, and that's how tarot is. Moving on to the next card, it says reality check. This card is all about reality check. Assessment, exploration, honesty, determination. आपके साथ ये जो टर्मोइल्स, आप बर्डन्स, हार्डशिप्स आपने जो ओवरकम किया है, इसे अब ठंडे दिमाग में, दिमाग को शांत करके पहले हील कीजिए अपने आप को. हीलिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ. वी ऑल नीड हीलिंग, इज़न्ट इट? बिना हील किए एक सिचुएशन से और एक सिचुएशन में मत जाइए. हील कीजिए पहले अपने आप को. सो स्कॉर्पियो पीपल, वेल यहाँ पे रियलिटी चेक की बात आई है. क्यों आई है? क्यों आई है यहाँ पे रियलिटी चेक की बात? एसेस कीजिए, कोई भी सिचुएशन को, इंसिडेंट को एसेस कीजिए. कभी कभी क्या होता है, इंसान दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचता है. इट्स अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. स्वॉर्ड्स आर ऑल अबाउट मेंटल थॉट्स, माइंड के बारे में. तो कभी कभी होता है हम लोग के लाइफ में कि 3D वर्ल्ड में, रियलिटी में जितना नहीं होता है, हम लोग सोच के उतना उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. ऐसा होता है, इंसान का स्वभाव है ऐसा. तो रियलिटी चेक इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एसेस द सिचुएशन बिफोर गेटिंग वरीड और बिफोर थिंकिंग टू मच अबाउट इट. मे बी आप ओवर थिंक कर रहे या फिर कर रहे थे. तो हील कीजिए अपने आप को, हैप्पीनेस पैदा कीजिए, हैप्पी फीलिंग्स पैदा कीजिए अपने अंदर, और मन को शांत करके रियलिटी को चेक कीजिए. डिस्टर्ब्ड माइंड में आप रियलिटी समझ नहीं पाएंगे. माइंड को शांत कीजिए, पहले स्थिर होइए, स्टेबल होइए. उसके बाद बैठ के, एकांत में बैठ के रियलिटी के बारे में सोचिए कि क्या वाकई रियलिटी वैसा था जैसा मैंने सोचा था या जैसा मैं सोची थी. ओनली then you will get the answer. Assess the situation, explore the situation, honesty के साथ, determination के साथ. यहाँ पे आपको honest and determined होने को कहा जा रहा है. हो सकता हो आप मिसगाइडेड हुए थे किसी भी तरह से या किसी इंसान से. अनमोटिवेटेड फील कर रहे थे, इसीलिए बर्डन्स वगैरह, हार्डशिप्स ये सब आया था आपके लाइफ में. तो पहले अपने आप को हील कीजिए. यहाँ पे भी हीलिंग की बात आई है. रिलीफ दीजिए थ्रू हैप्पीनेस, जनरेट हैप्पी फीलिंग्स, गेट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, काम योर माइंड. तब जाके रियलिटी को एसेस कीजिए. डिस्टर्ब्ड माइंड में रियलिटी एसेस करने से आपको आंसर्स नहीं मिलेगा, सही सिनेरियो, सही पिक्चर नहीं मिलेगा. शांत माइंड में कीजिए ये सब, तभी आपको आंसर्स का पता चलेगा कि रियलिटी वाकई में क्या था और आप क्या सोच रहे थे. ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा. ओके स्कॉर्पियो पीपल, so this was all about your reading. Satisfy your soul, satisfy your spirit, create a beautiful life, create beautiful thoughts, create happiness within yourself. Be happy. हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है जीवन में.
isn't it? ये हैप्पीनेस ही जीवन में अबांडेंस लाता है. सैड रह के कोई कुछ हासिल नहीं कर पाता है, कोई मैनिफेस्टेशन भी पॉसिबल नहीं होता है. सो यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट. Okay, so Scorpio people, hope this reading helped you and guided you in some way and you liked it. So do take it as it resonates with your own life. It's covering all your arenas of your life, all the departments of your life. You just need to take it as it resonates with you, because it's a general reading, it's a collective reading for all the Scorpios. So just take it as it resonates with your own life story. Okay, so thank you so much, Scorpio people. See you in my next reading. Till then, take care. Bye bye.